Okay. So I am beginning the class. Position time graph के बारे में पढ़ेंगे. Please try to be in the class. Breakout room activity होगी. There will be a difficult problem और इससे भी बहुत ही difficult problems आएंगी. Please don't leave the meeting जब तक ये lecture खत्म नहीं हो जाता. Even you know this topic, it would be hard for you to understand and solve the homework today. Please, please, please जाना नहीं छोड़ के, ठीक है? जब lecture में आ जाओ तो finish the complete lecture and then only go. निशाल और मरविन है, they are going for a race. ठीक है, तो वो एक रेस कर रहे हैं. रेस की जो दिस इज नथिंग बट अ पोजीशन, दिस इज नथिंग बट अ टाइम. हम अगर पहले फोकस करें कि दोनों के बीच में एक रेस हो रही है, ठीक है, तो व्हाट यू गाइस कैन सी कि अगर हम सिर्फ मरविन पे फोकस करें, इफ वी आर फोकसिंग ऑन ओनली मरविन्स ग्राफ, तो मरविन जो है वो 0 सेकेंड पे टाइम को रेस को स्टार्ट कर रहा है. ही इज स्टार्टिंग द रेस एट 0 सेकेंड. ओके, एंड व्हेन ही इज फिनिशिंग द रेस, he's finishing, this is the finish line, 6 meter. He's finishing the race at 6 seconds. Can someone tell me? Yes, Jay, what is the problem? Can you? We are not able to hear you. Okay, let me know. अभी clear है? अभी clear है? Everybody, show me thumbs up if my voice is clear now. Is it clear? Yeah, thank you. जब भी होगी then please tell me, okay? Thank you. बहुत ध्यान से देखना, ठीक है एवरीवन. दो लोगों के बीच में रेस हो रही है, निशाल और मरविन है, ठीक है. निशाल और मरविन है, ठीक है. मरविन का ग्राफ अगर हम देखते हैं, दैट इज स्टार्टिंग एट 0 सेकेंड एंड ही इज फिनिशिंग द रेस एट 6 मीटर इन 6 seconds. Focus. Can someone tell me when Nishal has started the race? When Nishal has started the race? Can someone tell me? In the chat box or come off mute and tell me. Yes, Jay, go ahead. Come off mute and tell me. At 2 seconds, भैया. So he has started late or started early? Late. Late. Can everybody agrees with Jay? If show me thumbs up if everybody agrees with Jay. No. Let me show. Okay. बहुत ध्यान से देखो सभी लोग, ठीक है. देयर इज अ सिचुएशन, यहाँ पे देखो, अगर 0 सेकेंड पे रेस स्टार्ट हो रही है तो निशाल ने 2 सेकेंड के बाद स्टार्ट किया, यानी चलना. आप डिस्टेंस पे देखो, डिस्टेंस जो चलना शुरू हुआ है 2 सेकेंड के तक, तो मरविन इज एट 2 मीटर्स. मरविन तो 2 मीटर्स तक कवर कर चुका था डिस्टेंस, बट निशाल ने 2 सेकेंड बाद स्टार्ट किया है, तो 0 मीटर पे है वो. ही इज एट द स्टार्टिंग लाइन, मतलब उसने स्टार्ट ही 2 सेकेंड बाद किया है. So if someone asks you by showing a graph कि who started late or who started early, just see कि distance क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में, right? Time 2 seconds के बाद निशाल ने start किया. Can someone tell me who won the race? कौन race जीता? Can someone tell me apart from Jay? Show me thumbs up or come off mute and tell me who won the race in between Nishal and Marvin. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. 6 meter है. Okay, someone told me. Okay, Nishal. Abhimanyu is saying Nishal. Very good. So Nishal is the correct answer. The reason is कि 6 meter is the finish line. 6 meter finish line है. Although Nishal ने 2 सेकेंड बाद स्टार्ट किया था, 2 सेकेंड बाद स्टार्ट किया था, बट उसने फिनिश बहुत पहले किया है, फिनिश ऑन टाइम किया है. सो कैन समवन टेल मी इन बिटवीन, अगर निशाल ने सबसे पहले फिनिश किया, क्यों? क्योंकि टाइम देखता हूं तो मैं 4 सेकेंड पे वो फिनिश लाइन पे है. दिस इज द फिनिश लाइन, राइट? निशाल फिनिश लाइन पे 4 सेकेंड पे, बट 6 सेकेंड तक मरविन चल ही रहा है. अभी मरविन 6 मीटर यानी फिनिश लाइन पे पहुंचता है 6 मीटर पे, मतलब 6 सेकेंड्स पे. सो कैन समवन टेल मी कि इन बिटवीन निशाल एंड मरविन हु इज फास्टर? हु इज फास्टर? कैन समवन टेल मी हु इज फास्टर इन बिटवीन निशाल एंड मरविन? यस धर्मेंद्र. निशाल. वेरी गुड. Now I want a tricky question. In between Nishal and Marvin's graph, how can you tell ki there is a difference in between Nishal and Marvin's graph, right? So is there any technique by observation you can tell ki Nishal और Marvin में से कौन तेज जा रहा है? Leave this 6 meter वाला thing and that thing. Only watch this graph by watching the graph. Yes, Jay. By degree. By degree. What do you mean by degree? भैया जो बीच का एंगल होता है उससे. या सो जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि कौन माउंटेन चढ़ना टफ होगा,
तो अगर हम निशाल और मरविन को एक माउंटेन एज्यूम कर ले, राइट, तो कौन सा इजी माउंटेन है? मरविन का माउंटेन इजी है. द सेम थिंग जो जय इज ट्राइंग टू से कि डिग्री मींस जो स्लोप है वो मरविन का स्लोप कम है, राइट, तो उसकी स्पीड कम है. सिमिलरली निशाल के जो माउंटेन का स्लोप है ग्राफ में वो ज्यादा है, यानी उसकी डिग्री ज्यादा है. अगर आप मेजर करोगे तो वो बहुत तेजी से चल रहा है. इसका मतलब आपको दिख भी रहा है ग्राफ में, 2 सेकेंड बाद स्टार्ट करता है और सबसे जल्दी रेस फिनिश कर देता है. नाउ दिस इज वेरी इजी थिंग, राइट. तो आगे क्या है आप लोगों के लिए, राइट, वेट, या ठीक है. निशाल और मरविन को आप देख रहे हो. वेट, लेट इट लोड. 20 seconds. टेक्निकल. ठीक है. तो देखो, निशाल और मरविन का ग्राफ आपने देख लिया, राइट. माय इंटरनेट इज वीक सो आई एम टर्निंग ऑफ. अच्छा ठीक है. शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर हुआ कि हु इज फास्टर और हु इज स्लोअर बाय वाचिंग द ग्राफ. शो मी थम्स अप अगर इतना क्लियर हुआ है, जो मैंने पहले भी बताया था, राइट. हु इज फास्टर एंड हु इज स्लोअर. थैंक यू, थैंक यू. ओके, देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, आई एम सॉल्विंग इट. ओके, या, थैंक यू फॉर दिस. ठीक है. नाउ आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है. इफ यू गाइज नाउ नो कि ये चीज है, तो जस्ट फाइंड मी द वेलोसिटी ऑफ निशाल एंड मरविन. जस्ट फाइंड मी द वेलोसिटी ऑफ निशाल एंड मरविन बाय वाचिंग द ग्राफ. आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम. Take 2 minutes time. 2 minutes time for everybody to find the velocity of Nishal and Marvin by watching the graph. Graph is in front of you. What is the velocity? कौन किस velocity से जा रहा था? Just watch the graph and find it. You have 2 minutes time. Instructions are clear. Show me thumbs up if instructions are clear. Yeah. Yeah. कौन है? भैया, I can't hear you properly. So Payal, okay. Payal, try to sit somewhere else or I am turning off my video. आपकी स्क्रीन पे ये ग्राफ दिख रहा है. रेस इज गोइंग ऑन बिटवीन निशाल एंड मरविन. आपको ये फाइंड करना है. आप लोगों ने ये सब बता दिया कि निशाल इज गोइंग फास्टर देन मरविन. आई एम आस्किंग हाउ मच फास्टर निशाल इज गोइंग इन कंपैरिजन टू मरविन. व्हाट इज द स्पीड ऑफ निशाल्स स्पीड एंड व्हाट इज मरविन्स स्पीड? Yes, velocity. Velocity meaning, yeah, that is the thing. You should try to come in the class, Abhimanyu. This is, or read it on your own. If you guys have ample notebook, everything is with you, right? So velocity topic has been covered. Velocities मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ. Velocity is nothing but total displacement divided by time. ठीक है, ये फॉर्मूला है for your help. And now see the graph and try to find it. ठीक है. You have 2 minutes time. जो भी कर लेना, टाइप इन द चैट बॉक्स डन. हाँ, और टाइप योर फाइनल आंसर ऑल्सो इन द चैट बॉक्स. Those who have joined newly, बाकी लोग करते रहो. Those who have joined newly, first thing, please try to join on time. Second thing, मैं आपको बता देता हूँ हो क्या रहा है. दो लोगों के बीच में रेस हो रही है, निशाल और मरविन के बीच में. ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. ये स्टार्टिंग लाइन है रेस की और ये फिनिश लाइन है रेस की. ठीक है, हमको ये देख के पता चलता है ग्राफ में कि निशाल जो है 2 सेकेंड लेट स्टार्ट करता है और फिनिश अर्ली करता है, क्योंकि 6 मीटर यानी कि जो फिनिशिंग लाइन है उस पर वो पहले पहुंच जाता है इन कंपैरिजन टू मरविन. ठीक है, मरविन स्टार्ट करता है रेस 0 सेकेंड पे, फिनिश करता है 6 सेकेंड्स पे और फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है 6 मीटर्स पे. ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि in between Nishal and Marvin, what is the speed of Nishal's speed, velocity, and what is Marvin's velocity or speed? In this case, both are same, speed and velocity. ठीक है, ये चीज आपको बतानी है. Those who have joined newly, you can chat with each other in the chat box. Take help from your friend, those who have joined newly. और जो भी कर ले, just show me thumbs up. हाँ, जो भी इस क्वेश्चन को कर ले. Anybody done? नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी.
जय, डिम्पल, राज आराधना, अभिमन्यु। फॉर अ हिंट, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड भी डिस्टेंस बाय टाइम। ग्राफ देख के करना है, दैट इज द थिंग, ओनली थिंग। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि निशाल इज गोइंग फास्टर, क्योंकि उसके माउंटेन पे चढ़ना मुश्किल होगा, राइट? उसके माउंटेन पे चढ़ना मुश्किल होगा। यस अभिमन्यु, कम ऑफ म्यूट एंड आस्क। जो भी डाउट है पूछ लो। यस यस, जल्दी पूछो अभिमन्यु। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, एनी हेल्प यू वांट एवरीवन? भैया हाँ, फिलोसफी समझाओ ना फिर से। वेलोसिटी क्या होती है? देखो, वेलोसिटी क्या होती है आराधना? जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कितनी डिस्टेंस कवर की है, राइट? फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन देखो। जैसे अगर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बता दूं, अगर सिर्फ आप निशाल को देखो, निशाल की इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 मीटर। 2 0 4 मीटर 0 पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 0 मीटर है। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स पे वो 0 पोजीशन पे है, ठीक है? ये 2 सेकेंड्स है। 2 सेकेंड पे वो 0 मीटर पे, यानी कि इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? 6 मीटर। 6 किस किस टाइम पे? 4 4, वेरी गुड। तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? 2 2 सेकेंड्स। और डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। 6 0 से 6 आंसर क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपने बताया कितना मीटर है? 6 मीटर है। और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 सेकेंड्स है। 2 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। या गॉट इट? ऐसे ही एवरीबडी ट्राई टू फाइंड फॉर मर्विन। थिंक अबाउट ऑन दोज लाइन, मर्विन्स का फाइंड करो, ठीक है? ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको फॉर्मुलेट कैसे करना, उसको आंसर में कैसे लेके आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मुझे देख के सब समझ में आ रहा है, बट मुझे उसे आंसर करना है, राइट? वो चीज आनी चाहिए। ओके, मर्विन का करके बताओ, ठीक है? जो भी कर ले, शो मी थम्स अप और कम ऑफ म्यूट और कीप ऑन टेलिंग मी कि क्या आंसर है। वेलोसिटी में कुछ समझ नहीं आया। देखो बहुत सिंपल सा है, वेलोसिटी कुछ नहीं होता। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे मैंने अभी आराधना को बताया, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं निशाल का डिस्प्लेसमेंट देखूं, निशाल का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है अभिमन्यु निशाल की? 0 मीटर। फाइनल पोजीशन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट को ये बोलते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका अपनी ओरिजिन से? 6 मीटर। तो 6 मीटर हो जाएगा ऊपर। कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? हाउ मच टाइम ही टुक टू मेक दैट डिस्प्लेसमेंट? 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ये चीजें हुई है, कहानी हुई है, उसने रेस अब कंप्लीट की है, तो 2 सेकेंड्स। तो टाइम ड्यूरेशन बस 3 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड आ गई। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? शो मी थम्स अप इफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट मच। बाकी ओके, मर्विन की स्पीड आपको बतानी है। एवरीबडी हैव टू टेल मी मर्विन स्पीड। यू हैव लास्ट 1 मिनट, देन मैं आगे बढ़ूंगा, राइट? जय, डू यू हैव एनी आंसर फॉर मर्विन स्पीड? Okay, Abhimanyu is saying 1. If Abhimanyu is saying 1 meter per second, everybody. Abhimanyu, can you type in the chat box how you thought about it in terms of formula? For everyone. जब भी chat में लिख रहे हो, everyone के लिए करो. Okay, you are sending me, it's good. But बाकी लोगों के लिए भी करो. Okay. Okay. Don't worry, मैं बताऊंगा. परेशान मत होना कोई लोग भी. डरने की जरूरत नहीं. I will explain again सब कुछ. ठीक है. Very good. Very good, Dimple. Very good. ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड होगी। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। दोज हु एग्री कि मर्विन की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी, शो मी थम्स अप। दोज हु एग्री कि मर्विन की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी, एंड दे फाउंड इट। 1 मीटर पर सेकेंड वाले थम्स अप। राजराधना 1 मीटर पर सेकेंड। अभिमन्यु 1 मीटर पर सेकेंड। अदर्स ओके, कोई बात नहीं, बताते हैं, ठीक है? जय, हैव यू फाउंड द आंसर?
किशोर, ओके ठीक है, चल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताता हूं मैं क्या हो रहा है। देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वीएम मींस मरविन की स्पीड, ठीक है। आपसे ऐसे ही खूब सारे ग्राफ दे देंगे बहुत सारे लोगों का, और मैं अभी ये देने भी वाला हूँ, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी में ब्रेकआउट रूम में जाओगे आप लोग एंड यू विल डिस्कस वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और वो पूछते भी हैं बहुत बार बार। सो आई विल सी कि ये चीज आपको कंप्लीटली क्लियर हो। तो मरविन को ध्यान देते हैं, मरविन की स्पीड निकालनी है। तो मरविन स्टार्ट कहां से करता है एवरीबॉडी, 0 मीटर से स्टार्ट करता है, और मरविन कहां जाता है, 6 मीटर फाइनल लाइन पे। फाइनल पोजीशन उसकी कितनी है, 6 मीटर, और इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 मीटर का। गॉट इट। और 6 सेकेंड, ऐसा करने में उसको टाइम कितना लगा, हाउ मच टाइम ही टुक टू कंप्लीट दैट मच, 6 सेकेंड। देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब ओरिजिन से फाइनल तक में जाने में का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, मरविन की स्पीड। निशाल की स्पीड मैंने आपको बताया था कि 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकेंड्स टाइम में, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट्स प्रूव्ड, अगर आप निशाल की स्पीड देखो और मरविन की स्पीड कंपेयर करो तो इट्स 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। So who is faster? Nishal is faster. So you have proved that. तो अगर ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं then you can do that. How many of you understood that much? Show me thumbs up अगर आपको इतना समझ में आया, नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। It's very important कि आप लोगों को क्लियर हो, right? कुमकुम, दीपा, दीपक, नहीं समझ में आया, ओके आ गया, वेरी गुड, राइट, इजी इजी ब्रीजी। नहीं आया तो अभी उसमें आके वी विल क्लियर इट आउट। अब थोड़ा सा एक डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, राइट। जिनको ये इजी लग रहा था उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, एंड दोज हु विल बी एबल टू आंसर दिस आई विल बी थिंकिंग कि या दे आर गुड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। ओके, जस्ट थिंक अबाउट जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला। अच्छा, कैन समवन रिकॉल विच टाइप ऑफ मोशन दे आर परफॉर्मिंग, निशाल एंड मरविन जो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई ये फिगर ऑब्जर्व करके उस मोशन का नाम बता सकता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस। टेक 30 सेकेंड, सी देयर ग्राफ्स, और ये बता सकता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने आप मेरे को दोनों का आंसर दे दिया, मैंने बढ़ाया भी है, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। थिंक ऑन दोज लाइंस। जिसको भी आंसर आता है टाइप इन द चैट बॉक्स एंड व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दैट, बिकॉज दे विल आस्क यू व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट। ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ओके, आई हैव non-uniform Abhimanyu is saying. Okay, let's see. Others think about it. ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मैं बता देता हूँ क्या है दोनों के बीच में, क्या होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्जर्व करो उनके ग्राफ को, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब है इक्वल टाइम ड्यूरेशन में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बाय वॉचिंग अ ग्राफ, बोथ निशाल एंड मरविन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहे हैं। और बाय सिंपली ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अगर कोई कर्व दिख रहा है, कर्व ग्राफ में मैंने बताया था, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और सो जस्ट टेल मी कि व्हाट डू यू गाइस कैन से कि ये कैसा मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म इज सेइंग यूनिफॉर्म इज ओके, यूनिफॉर्म, सॉरी अभिमन्यु इज आल्सो सेइंग यूनिफॉर्म ओके, डिम्पल यूनिफॉर्म, ठीक है। सो यूनिफॉर्म का मतलब मैं समझा देता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2-3 कर्व्स आपस में मैचअप करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में दे विल, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी दे मे राइट ओनली वर्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो आप पूरी तरह से ये ग्राफ नहीं होगा अगर, तो आपको ग्राफ खुद बनाना होगा, तो वहां डिफिकल्टी होगी। दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना जिसको इसको नहीं समझ में आया। इसका ग्राफ देखते हैं, मरविन का ग्राफ ये वाला, ठीक है। 1 सेकेंड में ये कितना मीटर चलता है, इन 1 सेकेंड ही इज कवरिंग 1 मीटर। सी 1 सेकेंड
1 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकेंड 2 मीटर डिस्टेंस, 3 सेकेंड 3 मीटर डिस्टेंस। हर एक सेकेंड में कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ये? 1 मीटर। तभी तो आपने बोला उसकी स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1 मीटर आगे बढ़ रहा है वो। गॉट इट? मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करेगा कांस्टेंट टाइम में। एक सेकेंड में देखो, हर एक सेकेंड में वो एक ही मीटर कवर कर रहा है। इसी चीज को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, या कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कि ही इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मच? शो मी थम्स अप। बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ मैं बता दूंगा, अगर वो टर्मिनोलॉजी वाला वर्ड आ गया देन यू ऑल विल बी ब्लैंक कि ये कुछ नया सुन लिया क्या मैंने। अच्छा, बाकी लोगों के लिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब हम निशाल का ग्राफ देखेंगे। राज, आराधना, कुमकुम, नीरज, किशोर। रिमेंबर द डेफिनेशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट स्पीड। जैसे आप दौड़ रहे हो, 1 मीटर बोला ना आपने, 1 मीटर पर सेकेंड, तो वो जो है वो 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 ही मीटर कवर कर रहा है। सो लेट्स मूव एंड सी। अब एक इनका देख लेते हैं। इनका आंसर क्या आया था? एवरीबॉडी फोकस। निशाल का आंसर क्या आया था वेलोसिटी का? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। देखते हैं कैसे। निशाल ने 2 सेकेंड पे स्टार्ट की थी रेस, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे ही स्टार्टेड द रेस, राइट। एक सेकेंड के बाद, एक सेकेंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? आफ्टर 1 सेकेंड ही कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया निशाल ने? इसको देखो, इस ग्राफ को। 3 मीटर पे है वो, 0 से 3। आपका आंसर भी क्या आया था? 3 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कैसे। नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो कितना गया? नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी वो 3 मीटर और ऊपर गया। हर एक 1 सेकेंड में वो 3 मीटर ऊपर जा रहा है, 3 मीटर और आगे जा रहा है। अगेन ही इज डूइंग अ कांस्टेंट मोशन, यानी कि इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? जिन दोनों ने रेस किया हैंड, कम ऑफ म्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। बाकी जो लोग को समझ में आया, टेल मी दैट। इट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ओके। अगर ये ग्राफ से आप वर्ड प्रॉब्लम को डिकोड करना सीख गए, देन माय टास्क इज डन। आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, राइट। और ये ही हर चैप्टर में कोशिश करूंगा मैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये कोशिश होगी कि आप लोग खुद से ही डिकोड करना सीख जाओ, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम डिकोडिंग में बहुत दिक्कत होती है, राइट। मुझे होती थी, आपको भी होगी, और सबको होती है, राइट। सो अभी इसका उल्टा भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वर्ड प्रॉब्लम से ग्राफ बना के फिर सॉल्व करेंगे, और वो सबसे ट्रिकी होता है। अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स देने हैं, सो यू शुड नो ऑल दोज थिंग्स, ओके। नेक्स्ट, बाकी लोग तो भाग रहे हैं, कोई बात, ठीक है भैया। एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है चैट बॉक्स यूज करो। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके ओके, सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिटी चली गई, सिटी क्या चली गई? और 4%। बैटरी तो चार्ज करो, फोन चार्जर अपने साथ रखो। सी, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर सकते हो, प्लीज। मैं कैसे, अब मैं आऊँगा तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया फास्ट, और वो बता दिया। अब एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। बहुत ही ट्रिकी चीज है। फोकस। निशाल और मरविन हस्बैंड एंड वाइफ है, इन्होंने रेस की, आपने रेस देख ली इनकी, ठीक है। इनके पास एक डॉग है, इनके पास एक डॉग है। डॉग की जो लोकेशन है इस समय, वो 4 मीटर पे है। किस पे है? 4 मीटर पे। डॉग की जो लोकेशन है वो 4 मीटर पे है जब ये लोग रेस स्टार्ट करते हैं। कैन समवन टेल मी बाय वॉचिंग दिस ग्राफ कि ये डॉग किस तरह से दौड़ रहा है? टेक 30 सेकेंड। ये डॉग का ग्राफ है, ये वाला। निशाल तो इधर जा रहा है, मरविन इधर जा, डॉग क्या कर रहा है? जस्ट कम ऑफ म्यूट एंड बताओ कि डॉग किस तरह का मोशन कर रहा है। टेक 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट। आंसर तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। वो मैं अभी समझाऊंगा क्या है, बट ये किस तरह का मोशन कर रहा है, कैसे चल रहा है ये? एनीबडी?
जय, राज, आराधना, किशोर इज देयर. किशोर, हाय किशोर, कैन यू ट्राई? यू वांट टू ट्राई? जस्ट थिंक. नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. अगर कोई बता पाए लास्ट 20 सेकेंड, दैट इट वुड बी ग्रेट. जस्ट थिंक अबाउट इट कि पहाड़ चढ़ने वाला जो मैंने बताया था, राइट, ऑन दोज लाइन, ये क्या कर रहा है? भैया डॉग. कैन यू प्लीज रिपीट, मुझे समझ नहीं आया. ओके, देखो इन दोनों के पास, निशाल और मरविन का आपको समझ में आया, राइट किशोर, क्या कैसे रेस कर रहे हैं? ठीक है, स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन पे जा यस रहे हैं. भैया. इनके पास एक डॉग है. डॉग जो है, डॉग की पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन वो 4 मीटर पे है. ठीक है, और फाइनल पोजीशन उसकी 0 मीटर पे है. इस चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हो क्या रहा है? डॉग क्या कर रहा है? डॉग मतलब इनका डॉग कैसे चल रहा है रेस लाइन पे, रेस ट्रैक पे? इनका डॉग कैसे चल रहा है? थिंक अबाउट इट. अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन मतलब क्या? रेस ट्रैक पे, रेस ट्रैक पे. अज्यूम करो एवरीबॉडी, अज्यूम ये रेस ट्रैक है. ठीक है, ठीक है. भैया वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कर्व में चल रहा है वो. टेढ़ा मेढ़ा? अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा किस, कहां पे है, कहां से कहां चल रहा है? देखो ये निशाल और मरविन है. ठीक है, ये इनका डॉग है, निशाल मरविन और ये फिनिश लाइन है. डॉग जो है इनका, ये डॉग किधर चल रहा है? इधर से इधर चल रहा है, फिनिश लाइन की तरफ चल रहा है, फिनिश लाइन के अपोजिट चल रहा है. जस्ट इतना बताओ, फिनिश लाइन के अपोजिट चल रहा है. कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? कौन कौन एग्री करता है इस चीज से? ये तो मैंने सामने बना दिया, ग्राफ देख के देखो. फिनिश लाइन के अपोजिट चलता है. जब वो लोग दौड़ रहे होते हैं वो उनकी तरफ आ रहा होता है. ठीक है, 4 मीटर से. ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन ये रियल में होता है, राइट? आपका जो डॉग होता है वो कभी भी किसी भी दौड़ सकता है. ऐसे ही किसी भी मोशन को डिपिक्ट किया जा सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ पे. अंडरस्टूड? बस इतना ध्यान रखो कि फिजिकली उसको एज्यूम कैसे कर रहा हूं. मैं फिर से समझाता हूं सबके लिए. इस ग्राफ को ध्यान से देखो. ये रेस ट्रैक है, ये फिनिश लाइन है. निशाल जो है यहां पे है, मरविन यहां पे है. लेकिन जब मैं 0 सेकंड पे, जब t इक्वल टू 0 सेकंड पे, जब टाइमर देखता हूं स्टार्टिंग ऑफ द रेस, तो दोनों तो मुझे रुके हुए दिखते हैं, निशाल और मरविन. लेकिन मुझे जो उनका डॉग है वो 4 मीटर दूर दिखता है. कहां दिखता है? 4 मीटर दूर. ये डॉग है. फिर ये दोनों तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है, क्योंकि इनको रेस जीतनी है. और इनका जो डॉग है ये डाउन द हिल, उल्टी डायरेक्शन में जाता है. उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन को शो करने के लिए, उल्टी डायरेक्शन को शो करने के लिए इन फिजिक्स, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कन्वेंशनली रेस को जीतने के लिए, तो उल्टी डायरेक्शन को आप किस साइन से शो करोगे? एनीबॉडी? भैया हाँ, नेगेटिव. नेगेटिव. तो मैथ में उसको नेगेटिव डायरेक्शन शो करते हैं. तो देखो, अगर मुझे अब डॉग की स्पीड निकालनी है. हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? ओके, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? या, थैंक यू. वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, राइट? बहुत ही प्यारी सिचुएशन है. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा 100 बार, बट अंडरस्टैंड, ये इससे भी टफ होंगी चीजें. बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आप कोई भी ग्राफ डिकोड कर ले जाओगे. कोई भी ग्राफ डिकोड कर लिया, यानी कि कोई भी लाइव सिचुएशन को आप पोजीशन टाइम ग्राफ पे बना पाओगे. और अगर किसी भी लाइव पोजीशन को आप पोजीशन टाइम ग्राफ पे बना पाओगे, तो अभी तो 9th तो छोड़ दो, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो साइंस में, राइट? तो ये ग्राफ काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कल को अगर हम कोई मॉडलिंग या कोई डिजाइनिंग बनाएंगे, तो रोबोटिक्स या किसी और लीनियर, जिसको भी साइंस या टेक्नोलॉजी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो ये इक्वेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे. क्योंकि अगर मोटर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका साइन नेगेटिव आएगा. ठीक है, जो अभी आंसर दिया जय ने, बहुत ही क्रूशियल आंसर है. ठीक है, ओके. हाउ मेनी ऑफ यू, अब देखो वो डॉग की वो निकाल लेते हैं. स्पीड क्या थी डॉग की? उल्टी डायरेक्शन में घूम तो रहा है, बट स्पीड तो होगी ना, दौड़ तो रहा है ना वो. ठीक है, तो बस ये देख लेते हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन कवर करता है वो. 5 सेकंड कवर करता है. कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 4 मीटर पे रहता है, उल्टी डायरेक्शन में आता है, और फिनिश मतलब ओरिजिन पे आता है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी 4 मीटर का हुआ ना, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में हुआ. उल्टी डायरेक्शन का मतलब माइनस लगा देंगे, -4 मीटर. -4 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड में ऐसा हुआ. उसकी स्पीड कितनी थी? 0.8 मीटर पर सेकेंड.
हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दैट मच? शो मी थम्स अप अगर आपको इतना क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है। जिनको नहीं क्लियर है, देयर इज वन एक्टिविटी वी विल डू, उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा है? यू गाइस फाइंड इट इंटरेस्टिंग और नॉट? शो मी थम्स अप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम ट्राइंग टू टेक इट इन अ स्टेप वाइज मैनर, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इसको रियल लाइफ इवेंट से कोरिलेट करके बना सकते हो किसी का भी पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, अब एक काम करते हैं, ठीक है? टर्न ऑन योर वीडियोस फॉर 30 सेकेंड्स। टर्न ऑन योर वीडियोस फॉर 30 सेकेंड्स। टर्न ऑन योर वीडियोस फॉर 30 सेकेंड्स। ओके 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 ओके, जितने लोग भी हो, डोंट वरी। नंदिनी, आप न्यूली ज्वाइन की हो, डोंट वरी। जिस भी टीम में नंदिनी जाएगी उस टीम का काम है कि उस कॉन्सेप्ट को उसको समझा दे, ठीक है? 2 ब्रेकआउट रूम बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है? एक ब्रेकआउट रूम में आप किशोर होगे, दूसरे में जय होगे, बाकी रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन कहाँ जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप खोलना अपना, एवरीबडी ओपन योर व्हाट्सएप, जो ग्रुप का व्हाट्सएप है। जब मैं बोलूंगा उस पर मैं अभी वो डाल रहा हूँ, एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है? इसी पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसमें। आप लोगों के पास 10 मिनट्स होगा उन क्वेश्चंस को खुद से मिल के सॉल्व करके या अकेले सॉल्व करके, जैसे भी ग्रुप में जा रहे हो तो ग्रुप से सॉल्व करो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। ऐसे ही पोजीशन टाइम ग्राफ है और आपको रेस की सिचुएशन है, 3 लोगों के बीच में रेस हो रही है, आपको खुद समझना है सब कुछ और आंसर देना है उस क्वेश्चन का, ठीक है? मैं शेयर करने जा रहा हूं इन द ग्रुप इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। ओके, आई नो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट ओके, लेट्स फाइंड आउट। लेकिन पहले तीनों की निकाल लेते हो। हेलो, पहले तीनों की निकाल ले। टाइम स्पीड निकाल लेते। चलो, पहले फर्स्ट की हो गई। नाउ फाइंड आउट द सेकंड वन, बी की कितनी निकली। अच्छा, शेयरिंग, आई थिंक यू कैन शेयर। अच्छा, तब तक ये देख लो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में आप तीनों लोग अकेले ही आप तीनों अकेले ही पढ़ सकते हो, राइट? तो मतलब व्हाट्सएप पे ओपन करके, हाँ, यू कैन डू दैट। विकास, ग्रुप में वो होगा तो उसको देख के करना। हाँ विकास, इन अ डिफरेंट वे। या और आर्टिकल में क्या बताया कि कोई एग्जांपल दिया है किसी के बारे में? या किसके बारे में? कैन यू गिव वन भैया, एग्जांपल? ब्रेड। ओके भैया, वेट। एक जर्नलिस्ट का दिया था भैया। ये इसका या रिचर्ड ब्रांसन। रीजन ब्रेडसन। तो ये वो हैं जो कि आपको स्पेस में ले जाने वाले हैं, राइट? ये जैसे आप, यस। he is the one who has started the airlines, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। और इनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी बचपन में, ठीक है? he was not able to understand a single word, ठीक है? so why I have chosen this article, first thing first कि dyslexia is a one disease, but see कि even उनको लिखने पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी, but he started one of the most famous empire, जो $1 billion का empire है, वो उन्होंने establish कर लिया। so it's okay अगर आपको अभी इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। सो ही फाइंड, एक चीज और उन्होंने लिखी है, ही सेज दैट ही गॉट बोर्ड इजीली इन द स्कूल, क्योंकि स्कूल में कन्वेंशनल मेथड था, बट ही नेवर स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर थिंग। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एजुकेशनल वाइज और अनएजुकेशनल वाइज, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाउ, ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है? एंड कीप भैया, ऑन नॉट वर्किंग एबल ऑन। टू हियर यू क्लियरली। सो कैन यू हियर मी नाउ एवरीबॉडी? कैन यू हियर मी? यस। Yeah. So this particular article is about one disease, that is dyslexia, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे आपने तारे जमीन पर देखा होगा कि वर्ड्स थोड़े से जम्बल्ड अप होते हैं। तो इनिशियल एज में ब्रेन में क्या होता है कि
कुछ लोगों को चीजें स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियर नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मतलब वो वर्ड्स एक ही जगह उल्टा ही दिखेगा एंड समथिंग लाइक दैट, जो आपने मूवी में देखा होगा। तो क्या होता है कि अगर दे नीड लिटिल बिट मोर अटेंशन शुरू में, बट ऐसा इसका मतलब ही नहीं कि दे आर वीक इन एवरीथिंग, दे आर स्मार्ट पीपल एंड दे कैन कोप अप विद दैट। तो उसी में इस पूरे आर्टिकल में इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ दिस पर्टिकुलर डिजीज, कैसे रिचर्ड ब्रांसन का एग्जांपल, राइट, जय ने बताया। जय, कैन यू टेल मी और एनीबडी एल्स, राजन, आराधना, कि कोई और इनसाइट्स हैं आप लोगों के पास, और एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से समथिंग, जो भी इस आर्टिकल के बारे में आपने सुना या पढ़ा अभी आपने। जय, हु एल्स वी हैव? ये स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू फिनिश इन 20 मिनट्स रीडिंग दिस? कितने लोग फिनिश कर पाए 20 मिनट्स में? ये हमारा हो गया था। हो गया था? किशोर, हाँ, हो गया था रेडी। किशोर, धर्मेंद्र, हो गया था? ठीक है। नहीं हुआ था, ट्राई टू डू इट इन 30 मिनट्स एट योर होम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और पढ़ते टाइम ट्राई टू थिंक अबाउट इन अ लाइन की आई एम, ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था, एक आदमी को मैंने बोला था क्वेश्चंस देख के रखो। तो व्हेन यू, देयर इज अ वन स्ट्रेटजी व्हिच आई एम सेइंग कि सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन का भी आंसर देना, देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आल्सो, सो हाउ टू डू दैट। तो मैंने बोला था एक आदमी को क्वेश्चन देख के रखो, लेकिन वो आदमी आपके ग्रुप में हमेशा तो रहेगा नहीं, आप अकेले रहोगे। तो इट्स अ गुड स्ट्रेटजी समटाइम्स जस्ट रीड द क्वेश्चन। जब आप पढ़ रहे होगे, फिर जब आफ्टर रीडिंग अ क्वेश्चन, तो आपको आंसर्स दिखने लगेंगे, अंडरस्टूड? तो इवन विथ अ लिमिटेड टाइम यू कैन आंसर दैट, ठीक है। तो मैं अभी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, और आप लोगों को जाना है स्कूल्स में, सो मैं ब्रीफ में इस चीज के बारे में बता देता हूँ। और आपका होमवर्क भी क्या है, आपको यही आर्टिकल पढ़ना है, इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को पढ़ो, मुझसे जो डाउट होता है मुझसे पूछो व्हाट्सएप के थ्रू। आर्टिकल के इस वर्ड का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। ग्रुप में पढ़ना है, ग्रुप में पढ़ो। 4 लोगों के साथ पढ़ना है, 4 लोगों के साथ पढ़ो। डिकोड करो उन 10 क्वेश्चंस का आंसर, अपनी कॉपी में लिखो ABCD, लास्ट ऑप्शन जय, नंदिनी, ललित एंड एवरीबॉडी। क्वेश्चंस में बता देता हूं, ठीक है। आपको लास्ट में जो दिखेंगे ये राइटिंग क्वेश्चंस हैं। एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी व्हाट डज डिसलेक्सिया अफेक्ट, MCQs तो आपको टिक करना है, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि बड़े इजीली आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। उसके बाद वो आपको ओपिनियन देना है, ठीक है, कि डिसलेक्सिया किस चीज को इफेक्ट करता है। नॉट मोर देन 2 सेंटेंसेस, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा लिखना, 2-2 मिनट का, ठीक है। एंड क्वेश्चन 8, 9, 10 उसी चीज के बारे में, क्या प्रॉब्लम होती है। और ऑथर ने कुछ एक लाइन बताई है कि इवन विथ सो मेनी ऑब्स्टेकल्स विद डिसलेक्सिया देयर इज आल्सो देयर इज अ होप टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। और आपको एग्जांपल दिखता है कि देयर इज एग्जांपल ऑफ अभिषेक बच्चन, जो तारे जमीन पर भी देता है, उस बच्चे का भी, ईशान का एग्जांपल है। सो थिंक ऑन दोज लाइन, और आप बताओ कि इवन सक्सेस और फेलियर यू कांट डिफाइन विथ वन पर्टिकुलर डिजीज, या कोई आज अभी स्लो है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एट द एंड ऑफ द जर्नी, एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल, वो अनसक्सेसफुल होगा या सक्सेसफुल होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से टुडे। मैं ये ग्रुप में आपको शेयर कर दिया है, मैं अभी साइंस का होमवर्क भी शेयर करूंगा, आपको 10 बजे तक सबमिट करना है। जिसको कोई भी डाउट होगा प्लीज गिव इट टू मी, कि मुझसे पूछो, मैं पूरा आंसर भी बताने को तैयार हूँ, बट ट्राई टू अटेम्प्ट। मैं अटेम्प्ट देखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि आप बस कोशिश करो, राइट, जस्ट ट्राई, ठीक है। मैं हूँ हेल्प करने के लिए, और हम पूरी जर्नी में हम प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि फिर मैं छोटी छोटी चीजें भी लेके आऊंगा, और फिर मैं देखूंगा कि इसको आगे कैसे बिल्डअप करना है। और जो भी आप लिख के मुझे दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पे हेल्प करनी है, तो मैं वहां पे हेल्प करूंगा उस बंदे को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, कम ऑफ म्यूट एंड आस्क डाउट। बस बाकी आज की क्लास के लिए इतना काफी।